Good morning, dear students. Dear students, this is Sushil Tiwari. Dear students, today we are going to discuss about a new chapter. The chapter name is quadrilaterals. Dear students, before that we want to describe about polygon. What is polygon? As you know about polygon, in polygon, poly means many, gun means sides. If in a closed figure there are many sides, we call the given figure is a polygon. For example, polygon first is triangles, second quadrilaterals, third pentagon, hexagon, heptagon, octagon and so on. Dear students, it means in polygon there are two types of polygon. First one is regular and second one is irregular polygon. We define this in two parts. First part is regular polygon and second one is irregular polygon. Dear students, in regular polygon and irregular polygon, as you know, regular means continuously, a polygon in which all sides are equal, we call regular polygon. रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, जितनी भी साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी. ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. इरेगुलर में इसी का जस्ट अपोजिट होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल और मे नॉट बी इक्वल. अगर हम कहेंगे तो इक्वल होगी तभी इरेगुलर आपकी बनेगी, अदरवाइज इरेगुलर होगी. इट मीन्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. तो ये आपका इरेगुलर पॉलीगन होगा. अब इस पॉलीगन की वैल्यू हम डिफाइन करने के बाद देखते हैं जो रेगुलर और इरेगुलर है इसमें भी कई टाइप्स आते हैं आपके. जैसे रेगुलर में आपके पास अगर डिस्कस किया जाए, थ्री साइड से रिलेटेड इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, फोर साइड से रिलेटेड स्क्वायर आएंगे आपके. और जो आपका इरेगुलर पॉलीगन होगा इसमें आपके क्वाड्रिलैटरल्स में भी आपके पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं. इसी में आपका ट्रेपेजियम भी आएगा. अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन को समझने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स. सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना डिग्री का होगा, इसके लिए क्लास 8 में आप लोगों को एक फार्मूला डिफाइन करवाया गया होगा. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 into 180 degree. Suppose that we are going to discuss about quadrilateral. In quadrilateral, suppose that there are four sides. We put n is equal to 4. 4 minus 2 into 180 degree. As you know, 4 minus 2 is equal to 2 into 180 degree is equal to 18 to the 36, 360 degree. Means sum of all angles is equal to 360 degree if a polygon have four sides. अगर किसी पॉलीगन में फोर साइड्स हैं तो उसके सारे एंगल का सम 360 आएगा. तो क्वाड्रिलैटरल में भी मैं इसको प्रूव करूंगा. हाउ कैन वी गेट 360 डिग्री सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल. ये तो हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स के बारे में पॉलीगन के. अगर हमें डायगोनल पता करना हो, हाउ मेनी डायगोनल इन अ पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल in a
polygon. How many diagonals? The formula is n minus 3 by 2. N, where n is number of sides. Suppose that we consider about n is equal to 4. We put this value here, 4 into 4 minus 3 by 2. We get 4 into 1 by 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4 is equal to 2. Means how many diagonals in a polygon in which 4 sides is equal to 2. It means in quadrilateral how many diagonals? 2 diagonals. तो क्वाड्रिलेटरल में आपके 2 डायगोनल्स होते हैं. इस फार्मूले के बेसिस पर हमने डिफाइन किया. अब अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल ड्रा किए जाएंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 करेंगे 0 आ जाएगा. इट मीन्स ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, let us define about quadrilateral and we will study sum of all angles in a quadrilateral. Dear students, in earlier some classes you know about definition of quadrilaterals. What is quadrilateral? A quadrilateral is a closed figure or simple closed figure bounded by 4 line segments. Quadrilateral is a simple closed figure bounded by 4 line segments. For example, suppose that ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which 4 sides. It is a simple closed figure. देखिए फिगर सिंपल क्लोज्ड मीन्स ये आपका फिगर बहुत क्लोज है. इसमें अगर आप किसी टार्च से लाइट अगर मारेंगे तो आप देखेंगे कि इसका फिगर जो बनेगा 4 साइड और नीचे उसके ड्रा हो जाएगी. इट मीन्स इससे होकर कोई पास नहीं होगा, लाइट पास नहीं करती है. अगर कोई आप पेपर शीट कट करेंगे और अगर आपने इसका स्ट्रक्चर किसी थ्रेड से बनाने का प्रयास किया तो थ्रेड से भी बना सकते हैं. थ्रेड से बनाएंगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा इसका, और अगर आप किसी पेपर शीट से इसको डिफाइन करेंगे तो एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, सी हियर ABCD आर वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. हाउ मेनी वर्टिसेस? अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी वर्टिसेस इन अ क्वाड्रिलेटरल? 4 वर्टिसेस. हाउ मेनी साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल? 4 साइड्स. हाउ मेनी एंगल्स? ABCD 4 एंगल्स इसमें है. हाउ मेनी डायगोनल्स? हाउ मेनी डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल? 2 डायगोनल्स. कैसे? ये AC and BD आर 2 डायगोनल्स. अब इसमें देखिए हाउ मेनी साइड्स तो हो गए. हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स? तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स 2 पेयर. अपोजिट साइड से कितने पेयर होते हैं? 2. ABCD ADBC ये अपोजिट साइड्स के पेयर. एडजेसेंट साइड्स ABBC BC CD CD DA DA AB आपके पास एडजेसेंट साइड के 4 पेयर्स बनते हैं. एडजेसेंट साइड अगर आपको डिफाइन करनी ना आती हो तो आप देख के कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं.
देखिए ए बी बी सी इन दोनों में पॉइंट कॉमन है ना। अगर वन पॉइंट कॉमन है तो इसका मतलब ये एडजेसेंट साइड्स होंगी। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, जैसे हमने लिखा ए बी सी डी, तो ये कौन सी साइड होंगी? अपोजिट साइड होंगी। मीन्स एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं उनमें वन पॉइंट कॉमन होता है। मतलब एक ही वर्टिसेस से, एक ही वर्टेक्स से आप टू साइड्स जनरेट करते हैं। जो आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं उनमें आप देखते हैं कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। इट मीन्स वे एक दूसरे से कहीं पर क्या होती हैं? जुड़ी नहीं होती हैं। इट मीन्स नो कॉमन पॉइंट बिटवीन अपोजिट साइड्स। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो गए, एडजेसेंट साइड्स हो गए। ऐसे एंगल भी आपके बनते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, जैसे ए बी सी, बी सी डी, बी सी डी, सी डी ए डी या ए डी सी कहिए, डी ए बी। मीन्स आप साइक्लिक ऑर्डर में अगर मूव करेंगे तो आपको एडजेसेंट एंगल्स भी मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक वैल्यूज थी जिसको डिफाइन करना यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड था। अब आपके एग्जाम्पल्स अगर देखे जाएं, आपका ये जो बोर्ड है ये भी किस टाइप का है? क्वाड्रिलैटरल टाइप का है। अब क्वाड्रिलैटरल है क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 4 साइड्स हैं और 4 एंगल्स बनेंगे, 4 वर्टिसेस बनेंगे, 2 डायगोनल्स बनेंगे। मीन्स अगर क्वाड्रिलैटरल है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा। अब इस क्वाड्रिलैटरल फैमिली के सारे एंगल का सम आपने 180 ना देखकर 360 देखा है। अभी तक 180 आप ट्रायंगल में पाते थे, यहाँ पर आपको क्वाड्रिलैटरल्स के सारे एंगल्स का सम कितना मिला था? 360। हाउ कैन बी डिफाइन सम ऑफ angles in a quadrilaterals? This is our second point in your syllabus. Angles, some property of a quadrilateral. Angle, some property of a quadrilateral. Angle, some property of a quadrilateral. How can we define this? First we draw a quadrilateral ABCD. See here, ABCD is a quadrilateral. Now join two opposite vertices, we get a diagonal AC. Dear students, see here, ABC, ADC are two triangles. A diagonal divides a quadrilateral into parts. कोई भी ट्रायंगल जो आपने ड्रा किया इसके डायगोनल से देखा, अब ट्रायंगल के सारे एंगल का सम आपको क्या मिलता है? 180 डिग्री। एज वी नो इन ट्रायंगल ABC, sum of all angles, suppose that this is angle 1 and this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4. Now angle ABC plus angle BCA plus angle CAB is equal to 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल में आप अप्लाई करते हैं। नाउ we can write this value here, ABC, BCA means 2, angle 2 plus CAB means angle 1.
is equal to 180 degree. This is equation first. ऐसे ही similarly in triangle ADC, अब आप ट्राइंगल ADC देखेंगे तो सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ADC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल CAD is equal to 180 degree. We can write this value, angle ADC plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. रीजन यही है आपका, यहाँ पर भी है. Now we consider this is equation second. Dear students, if we add these two equations, we get, adding equation first and second, equations first and second, we get sum of these angles 180 प्लस 180, राइट साइड में आपका 360 हो जाएगा. लेफ्ट साइड में एंगल ABC प्लस एंगल 2 3 के साथ हम कर लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इसके बाद एंगल 1 को एंगल 4 के साथ ऐड कर लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4. इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो ये एंगल आपके क्रिएट हो जाएंगे. और एंगल ADC राइट साइड में देखिए 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ सी हियर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 रिप्रेजेंट एंगल C and angle 1 plus angle 4 represent angle A. So we can write this value here, angle ABC plus angle 2 3 means C, 1 4 means B plus angle ADC is equal to 360. That is, we can write this value here, angle A, this value represent angle A here. 1 plus 4 is equal to angle A. We can write this value here, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Sum of all angles in a quadrilateral is 360 डिग्री. तो ये देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया. तो ये 360 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी वांट टू डिफाइन द टाइप्स ऑफ quadrilaterals. How many types of quadrilaterals? Types of quadrilaterals. This is the second topic in our exercise, in our chapter, not in our exercise. This is our chapter number 8. Quadrilaterals chapter number 8 में आपके डिस्कस किए जाएंगे. तो क्वाड्रिलेटरल्स भी आपके 2 टाइप के बनेंगे मेनली. एक रेगुलर बनेगा, दूसरा इर्रेगुलर बनेगा. और रेगुलर और इर्रेगुलर, रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, इर्रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. हाउ कैन बी डिफाइन? इसके टाइप्स में देखिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. अब देखिए टाइप्स कितने टाइप्स के होंगे. देयर
so many types of quadrilateral. फर्स्ट वन इज, अब एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करिए ये किसी फैमिली का एक मेंबर है, तो ये जनरेटर का काम करेगा। अब नेक्स्ट जो इसके टाइप्स जनरेट करेंगे, सब में 4 साइड्स मीन्स क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको अभी तक हमने जनरलाइज किया, और इसके नेक्स्ट और फर्दर जो भी हम डिस्कस करेंगे उनमें ये प्रॉपर्टी तो रहेंगी ही, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखता रहेगा। सबकी अलग अलग डिफिनीशंस बनेंगी और अलग अलग वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। सपोज दैट फर्स्ट वन इज, पहले हम इरेगुलर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रेगुलर कर लेते हैं। इरेगुलर में आपका आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, व्हाट इज ट्रेपेजियम? A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel. एक पेयर अपोजिट साइड का अगर पैरेलल है तो आपका क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? ट्रेपेजियम होगा। ए बी सी डी, तो वन पेयर, ये देखिए ये पेयर है, इसके पैरेलल में है, मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये दोनों आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ए डी एंड बी सी। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ए बी और सी डी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो वी कॉल दिस इज अ ट्रेपेजियम। तो इसमें वन पेयर जो आपका होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये आपका हो जाएगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ट्रेपेजियम बन जाएगा। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे आपके ए डी और बी सी, ये अगर आपके दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इन दैट केस दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको सर्किल में पढ़ाए जाएंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो ये जो आपका ट्रेपेजियम है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट टाइप।